and we reach Lucknow. "71 out of 80 parliamentary seats. That was the kind of love that the Indian voter showed the Bharatiya Janata Party in the state down to the 2014 Lok Sabha elections. But there are some hard, cold facts about Indian politics, or rather, the beauty of it. Love escapes and returns faster than real life. The Indian voter, as devout as he or she is fickle, and tracking exactly that electoral emotion is Motorcycle Diaries. Well, going across East Uttar Pradesh, we reach Lucknow. We're in the city of Nawabs at a time of the unlikeliest of alliances, Bua Bhatija, SP, BSP, at a time where the Bharatiya Janata Party is trying very hard to come close to that historic mandate of 2014. Let's begin with an old cliche. With 80 Lok Sabha seats, the political road to Delhi has always passed through Uttar Pradesh. And this election, that road will be unpredictable, difficult to navigate, and full of blind turns for all, be it the unlikeliest of alliance, the current dispensation, or the ones trying to pave their way to redemption. After the declaration of Priyanka Gandhi, there are, the calculation of all the parties are upset at this stage. It is difficult to assess how it is going to fetch dividend for the Congress party, but it is surely one can say their prospects are going to be improved by taking this decision. Over 2 years ago, the Congress party and the Samajwadi party came together. Priyanka was campaigning with Samajwadi party. What happened? They hardly could get 2 seats in Lok Sabha, and they could hardly get in seats in State Assembly. The Gathbandhan, BSP and SP have started rethinking over their alignment, and now they will try to make a tactical type of adjustment with the Congress. Wherever their candidates are stronger, they will concede to their demand. If you go by the traditional percentage of caste formations, Dalit and backward, my God, they are a very powerful. BJP will face a threat from them. But again, depends how far will Congress increase its traditional support among Dalits, Brahmins and Muslims. BJP is the strongest party, no doubt about it. But the equations are changing now. The Dalits and backward who had come to the party because of Modi will have to think again. For the Congress, the entry of Priyanka Gandhi as much about state elections as it is about general elections. And for Lucknow, the current BJP bastion, a constituency held by the current Home Minister Rajnath Singh, amusement is high as this electoral procession passes by. The Congress and the BJP 50-50 चल रहा है, तो अभी किसी के लिए कोई श्योरिटी नहीं दी जा सकती. अब उनका तो कोई काम देखा नहीं प्रियंका गांधी के, मोदी को तो देखा गया है काम. इतना तो हमें नहीं मालूम कौन रंग जमाएगा, समझ रहे हैं. हम लोग तो सब कांग्रेसी हैं. प्रियंका जी के आ जाने से अब चुनाव थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. बीजेपी के लिए रास्ते थोड़ा कठिन हो जाएंगे, क्योंकि प्रियंका जी में इंदिरा जी का अक्स दिखाई पड़ रहा है. आपकी शक्ल अगर किसी पर्सन पर्टिकुलर आयरन लेडी से मिलती है आपकी शक्ल, तो आप इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भी आयरन लेडी बन गई. Yes, definitely she'll play a factor, but how big factor she would be, that has to be seen. प्रियंका गांधी थी क्या, आप बताइए.
प्रियंका गांधी कुछ नहीं थी। मेरे ख्याल से एक बार भी वो कोई नेता या कोई मिनिस्ट्री उन्होंने नहीं संभाली है। जब भी इलेक्शन का टाइम होता है उनको बुला लिया जाता है, फिर इलेक्शन यहाँ पे अगर हार गए फिर वापस 5 साल गायब है। सरकार तो शुरू से उन्हीं की चल रही है, प्रियंका गांधी की ही तो चल रही है। So there you have it, Priyanka Gandhi's first major political rally in Lucknow there. Both you can see Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi there. She has entered the fray. Will she make tangible impact politically is a separate story. We'll only know when that last vote is counted in Uttar Pradesh. कोई फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला है। ये सब रैली वैली हो रहा है, कुछ नहीं, ये सब दिखावा है, खाली दिखावा खाली। केवल दिखावा है। इनके आने से फर्क पड़ेगा, बिल्कुल सीटें बढ़ेंगी और सरकार भी आएगी। कांग्रेसी हो? नहीं, कांग्रेसी नहीं है, फिर समाजवादी पार्टी से हैं। प्रियंका गांधी? यस। कोई फायदा नहीं है ना इस तरह का वो करने में। ऐसे काम कर रही है और पब्लिक को परेशान कर रही है और कुछ नहीं। पब्लिक को परेशान कर रही है और कुछ नहीं। कौन आएगा? मोदी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो रोड शो वगैरह हो रहा है कुछ भी नहीं होगा उसका। कुछ नहीं होगा। मोदी होगा बस, जो होगा मोदी होगा बस। Rally all right, but we are stuck in a jam. Doubt we'll be able to get out of this traffic for a couple of hours. काम काफ़ी अच्छे किए इन 5 सालों में। और जाहिर सी बात है कि जो काम करेगा वो दिखेगा, और काम दिख भी रहे हैं इनके। तो हमें नहीं लगता है कि प्रियंका के आने से कुछ बहुत ज़्यादा इनको बढ़ोतरी होने वाली है। From Lucknow to Amethi, Rahul Gandhi's constituency. Already declaring him as the Prime Minister candidate 2019. And this is what we found. You know, one thing is for sure, nobody can beat the Bharatiya Janata Party and the Prime Minister in marketing. I still remember, in the year 2014, there was a hologram, the 3-dimensional hologram of the Prime Minister at every city centre, multiple of them in one city. Here, it's the Kamal Mela, where the BJP is accounting for all the kind of, what they've done in the last 4 years, each one of the various schemes that they have introduced and what has been, according to them, the success rate of that. वही किया मोदी जी ने, बातों से नहीं, धरनों से ये नहीं। क्या गेम है? ये खेलने वाला है जैसे आप सड़कें, रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था, बिजली, उर्फ, महिला सुरक्षा फिर से घुमाएं। आप इसमें से कोई एक ऑप्शन तो मैं अगर एक ऑप्शन चूज करूं और उस पे रुक गया तो आपको प्राइज मिलेगा। मुझे प्राइज मिलेगा। यस। चलिए कर लेते हैं महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा। अरे बस रह गया। तो ये उड़ी दिखाने का मकसद क्या है? ये राष्ट्रभक्ति की फिल्म है। राष्ट्रभक्ति की भावना फैले और हमारी सेना का सम्मान हो, हमारा स्वाभिमान बढ़े, यही इसका उद्देश्य है। हम लोग अमेठी में की ओर से स्मृति दीदी को धन्यवाद देते हैं कि एक अच्छी मूवी, जो पारिवारिक मूवी है, राष्ट्रभक्त पे आधारित, उसको दिखा के यहाँ एक मनोरंजन का साधन भी है और देश प्रेम की भावना भी जागृत करने का प्रयास स्मृति दीदी की ओर से। अमेठी की जनता हमेशा बीजेपी को पसंद कर रही है अभी कुछ दिनों से। However, outside of the Mela, a constituency died in wool for the love of the Gandhis. इस बार बदलाव निश्चित है। जो झूठ का भंडारा था वो बढ़ चुका है। इतने गुब्बारे फटे हैं झूठ के कि जनता उसको बटोरते बटोरते परेशान हो चुकी है। कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। अब भाजपा की ये कंडीशन आ गई है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके कमल मेला, पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी, ये मनोरंजन। अब इनके पास करने के लिए और कहने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। चाय बना लेंगे?
अब तो हर आदमी ये कहने लगा है कि चौकीदार के चौकीदारी में ही शक है। देश की जनता जो है गांधी परिवार को मानती है, जवाहरलाल नेहरू को मानती है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और देश का जो भी विकास हुआ है कांग्रेस की बदौलत तो किसी का नहीं हुआ है। अब हम लोगों के साथ हमारी बहन प्रियंका गांधी भी आ गई हैं। अमेठी में जबरदस्त उत्साह है। इस बार राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये अमेठी ने भी ठान लिया, उत्तर प्रदेश ने भी ठान लिया और पूरे देश ने मूड बना लिया है। बहुमत की सरकार होगी, मेजॉरिटी होगी, देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी, इसके अलावा कोई नहीं कर। यहाँ से तो कांग्रेस के अलावा कोई नहीं जीत पाएगा। This election, a core issue will be farmer distress, MSP amongst one of them. We reach the local mandi on a day when Amit Shah has called the traders buying from farmers chores. हम लोग चोर हुए कहाँ से, इसको साबित करिए पहले। हम लोग तो टैक्स पेड व्यापारी हैं। मोदी साहब, अमित शाह ने वहाँ राजस्थान में कहा कि व्यापारी चोर है, इसीलिए व्यापारी को चोर कहा जाता है कि हम लोग जो मद्दा धान खरीदते हैं इसलिए। कोई गवर्नमेंट नहीं सोचती व्यापारियों के बारे में, व्यापारियों को हित कैसे किया जाए, जबकि व्यापारियों से ही पूरा टैक्स देते हैं व्यापारी, व्यापारियों से ही गवर्नमेंट चलती है, व्यापारियों से ही सरकार चलती है। हम लोग कहाँ बेचने जाएं? अगर 1770 का हम लोग लेंगे तो हम लोग कहाँ बेचेंगे? सरकार को इस पे भी सोचना चाहिए ना कि व्यापारी कहाँ जाए, उसका भी तो कुछ कमीशन चाहिए, उसका भी तो दुकान है। यहाँ पे मंडी में तो 1600 1650 बिक रहा है। गवर्नमेंट ने कितना तय किया? 1750 रुपए। 1700 मिलता है? नहीं मिलता। अरे मिलता है, वहाँ जो बिकता है केंद्र पे वो उसका तो 1750 मिलता है। तो आप केंद्र में क्यों नहीं बेचते? तो वहाँ छोटे किसानों को नहीं लिया जाता, वहाँ बड़के को लिया जाता है। तो आपको यहीं पर आके बेचना? बिल्कुल। और कहाँ जाए, 10-5 बोरे लेके गए हैं कभी? कई बार गए। अब वहाँ जाऊँ तो 1 महीने बाद पैसे मिलेगा, जरूरत है आज की है। The other issue, the youth vote. Now, even in Rahul Gandhi's own backyard, we realize that there is a new voter this election, guided solely by the hunger to have a larger control over his destiny. The vote today, it's complex, it's getting younger, and what's most important is that it defeats a single political narrative. Maybe that's why there is discontent brewing in a national university in Rahul Gandhi's constituency of Amethi, where young students come from across the country. Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology. This was a college which in the year 2008 was plucked by the Congress from Noida and planted right here at Amethi. Quite obvious, vote bank politics. This is Rahul Gandhi's constituency. The students here are from across the country. What do they have to say? Let's talk to them. What I expect jobs for the youth. I expect development overall, not just in specific cities. I expect development in rural areas. I expect issues like pollution to be raised by the government. The strategies like bullet train and the industrial corridor belt. So these things take time to be constructed, and the outcome should have been seen by the population of India. So another 5 years should be given, not because they have done something great, just because to prove themselves once again. क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब्स नहीं मिल रही। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि अगर कोई पकौड़ा बेच रहा है तो वो भी अर्न कर रहा है, बट दिक्कत ये है कि अगर कोई इंजीनियरिंग करके पकौड़ा बेच रहा है तो फिर उसे हम एम्प्लॉयमेंट नहीं बोल सकते। एक तो 28-30 साल बाद इनको क्लियर मेजॉरिटी मिली है। एक्सपेक्टेशंस जो भी थी उस हिसाब से वो डिलीवर नहीं कर पाए, जो भी इनने बोला था। चाहे जॉब्स हो, आप 2 करोड़ जॉब्स की बात की थी, ब्लैक मनी हो गया। इस अमेठी डिस्ट्रिक्ट में मैंने पाया है एक्चुअली स्कीम्स तो बहुत हैं, बट रूरल पीपल को पता नहीं है वो चीज़ एक्चुअली क्या क्या चीज़ें चल रही है। तो वो पहुंचने तक ग्राउंड
लेवल पे टाइम लगता है। तो 5 साल काफी नहीं है आप सोचते? 5 साल मेरे लिए कम लगता है किसी भी गवर्नमेंट को, क्योंकि ऑलरेडी आपकी गवर्नमेंट, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट एक अच्छे टाइमलाइन पे थी, आप उस लेवल पे रहते हुए आपके अमेठी डिस्ट्रिक्ट में आप ग्रास रूट लेवल पे उस चीज़ को नहीं पहुंचा रहे हैं, और आप 5 साल की गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करना है कि आप ग्रास रूट पे उसको आप ऊपर उठा दें, तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। कहाँ से हैं आप? अमेठी। अमेठी से ही है, लोकल है यहाँ पे इस पूरे कॉलेज में? मैंने भी कांग्रेस को वोट दिया था, पर अभी तो प्रेजेंट टाइम में मैं खुद चाहता हूँ कि राहुल गांधी को पता चलना चाहिए कि यहाँ की जनता चाहती है कि आप सुनो उन्हें, आओ एक बार देखो। वो आते नहीं हैं, वोट तो पा जाते हैं क्योंकि वो यहाँ के हैं। जैसे स्टार्टअप्स को प्रमोट जैसे मोदी जी ने किया है, तो डेफिनेटली कुछ एम्प्लॉयमेंट होगा एजुकेटेड क्लास के लिए भी, तो आई वुड लाइक टू सपोर्ट फॉर मोदी। 5 साल और हाँ, उनका भी स्टार्टअप ही है, उनकी एज ज़्यादा नहीं है उनकी गवर्नमेंट की। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, तो चेंज आना चाहिए। यस। On our way from Amethi to Raebareli, on the highway, there are a lot of fields that dot the highway. We could see a lot of villagers in the field. We could see a bit of commotion. You know, if you wouldn't believe it, but one of the main issues, the biggest issues of election this time around in Uttar Pradesh is actually the issue of stray cattle. Why is it such a big issue? Is because at night, stray cattle, ever since the ban on slaughter, comes into the field of these villages and completely runs havoc and destroys the crop. यहाँ के किसान सब रात दिन परेशान हैं, रात रात टहल रहे हैं, और इनकी इतनी जटिल समस्या है कि अपनी खेती की निगरानी कैसे करें, और इतनी समस्याएं को लेकर के प्रदेश सरकार भी एकदम गुमसुम बैठी है। जानवरों की इतनी समस्या छुट्टा जानवर की हो गई है कि कभी किसी का हाथ तोड़ रहे हैं, कभी किसी का पैर तोड़ रहे हैं। इसलिए 4, 6, 10 के ग्रुप में हम लोग रहते हैं, ताकि अगर एक बैल या 4, 6 बैल एक तरफ टूटे तो हम किसान भी काफी लोग रहें, ताकि उससे कोई उसका शिकार न बन पाए। जो हम बिक्री करते थे, बिक्री करने छोड़ दीजिए, खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे, जिस तरह से छुट्टा जानवर हमारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे अच्छी पहल ये हो गई कि किसानों का नाश, जैसे कुर्सी पे बैठे किसानों को सत्यानाश कर दिए। सबसे अमीर व्यक्ति उनको किसान लग रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जो है जानवरों को दूर भगाने के लिए खड़े हैं, और यहाँ से जब खदेड़ते हैं तो घर पर जाकर के मार करते हैं। तमाम बूढ़ बुजुर्ग के जो है हाथ पैर तोड़ डाले। डॉक्टर कहे हाँ हाथ कैसे टूट गया बनमानुस है, तो उन्होंने कहा साहब हमका बैल मार दी। कहे तुम खाए तो नहीं लीस। दूसरे दिन हम जाके घेराव किए पिछले साल। डीएम साहब ने कहा मैं तुम्हें सबको जेल भिजवा दूंगी और तुमको तो मैं रास्ता दिखा दूंगी कि नेतागिरी होती क्या है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे लगे रहते हैं। सब लगे रहते हैं। आवारा पशु सबसे बड़ी चीज है कि सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा मुद्दा माना जाएगा, क्योंकि आप खुद देख लीजिए यूपी बजट में हायर एजुकेशन से ज्यादा उन्होंने आवारा पशुओं के लिए जो है धन आवंटित किया, तो जाहिर सी बात है बड़ा मुद्दा तो यूपी के लिए है ही है। Priyanka's rally in Lucknow is reverberating in Sonia Gandhi's constituency of Raebareli. प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, रायबरेली का तूफान। तो 99 में जब प्रियंका यहाँ पहली बार आई थी तो सोनिया जी के इलेक्शन एजेंट थी वो। तो एक तरह से हमारे लिए तो वो 99 से ही पॉलिटिक्स में है, तो 20 साल हो गए, और 3 लाख वोट से ज़्यादा वोटों से उन्होंने सोनिया जी को अपना पहला इलेक्शन अमेठी से जितवाया था। मेरे को 20 साल हो गए उन्हीं के साथ काम करते हुए। हम लोग ये रायबरेली और अमेठी के दोनों संसदीय क्षेत्र का ओवरऑल शी इज़ आवर बॉस। वर्कर्स को बहुत जल्दी इंटरेक्ट करती हैं अपनी तरफ, और बड़ी वर्कर्स में मिक्सअप हो जाती है। वर्कर्स को लगता है कि वो लीडर नहीं, जैसे उनके घर का ही कोई फैमिली का मेंबर होता है। इस तरह का एटमॉस्फेयर यहाँ पे मतलब वो क्रिएट कर देती है। आपको लगता है प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए इलेक्शन? कोई लड़े, इस पर यहाँ कुछ नहीं। यहाँ तो इतना ज़बरदस्त हमारा संगठन है, कोई भी चुनाव लड़ेगा तो बहुत सबसे ज़्यादा वोट से जीत जाएगा रायबरेली से। At the local tea stall, the opinion is divided. बहुत अच्छा काम, युवाओं को नए एजुकेशन, नए इंस्टीट्यूट यहाँ आ रहे हैं, शहर का भी विकास हो रहा है। तो युवा आके यहाँ पढ़ाई को लेकर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो चेंज बहुत अच्छा है। एजुकेशन को लेकर जितना कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर किया है और कोई पार्टी कर नहीं सकती है, और डिस्ट्रिक्ट में इतना एजुकेशन के लेवल पे इतना काम नहीं हुआ है। जितने इंस्टीट्यूशन, इतने बड़े बड़े नेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर हैं जो और किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो सब कांग्रेस पार्टी की ही देन है।
यहाँ के यूथ के लिए डेवलपमेंट किया है वो माननीय सोनिया गांधी जी ने किया हुआ है। बीजेपी का यहाँ कोई योगदान नहीं था। मोदी जी ने तो एम्स के जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आना था 400 करोड़ रुपए, उसके लिए भी रोक लगा दी। पर स्किल डेवलपमेंट तो मोदी जी का है। बिल्कुल नहीं है मैडम, मोदी जी का होगा, बनारस में तो हुआ नहीं, रायबरेली में कहाँ होगा। तो जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस ने ही किया है। आप रात हो गई है, कल सुबह आराम से निकलिएगा। बीजेपी द्वारा लगाया हुआ एक आपको हैंडपंप नहीं मिलेगा, पूरे जिले की मैं बात करता हूँ। 55 साल में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। 55 महीने में मोदी जी ने बहुत विकास किया, बीजेपी ने बहुत विकास किया। और आप सड़कें देख सकती हैं कैसी थी 55 सालों में। गरीबों को लूटा है और अमीरों को दिया है सिर्फ मोदी जी ने। क्या अच्छे दिन आए? Skill India Mission under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, a flagship scheme. The objective, to provide alternate skills with private partnerships to 1 crore people in India from 2016 to 2020. Till now, data suggests that 34 lakhs have been trained and jobs provided to only 10 lakhs. But the students in Raebareli are unfazed by this figure. और आपका पहला बैच है स्किल डेवलपमेंट का? जी मैम, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन। हाँ, हम लोग हमारी ट्रेड का फर्स्ट बैच है। आपकी ट्रेड का फर्स्ट बैच है। आपको लगता है आप अच्छे से प्लेस हो जाएंगे? जी मैम, बहुत अच्छा है यहाँ पे, सिखाते हैं बढ़िया, अच्छा मतलब टीचर भी अच्छे हैं और अच्छा पढ़ाते हैं और समझ मतलब सब मैनेज करके चलते हैं ना। आपको लगता है ये जो योजना है प्रधानमंत्री की अच्छी योजना है? बहुत अच्छी है। पहले कभी ऐसा कुछ होता नहीं था ना ऐसी योजना? पहले ऐसे कहाँ होता है, तो फर्स्ट बार जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तभी से हुआ है। 5 में से कितने नंबर देंगे नरेंद्र मोदी जी को इस योजना के लिए? 5 में 6। The road to elections is long and unpredictable. As I report on the most chaotic of democracies, the motorcycle has come to be my cocoon in this cacophony. The miles spent on it, processing all that we document, leaving Uttar Pradesh only to return later onwards to West Bengal. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.